कैसे हो फ्रेंड्स। एजुकेशनल जर्नी का ये चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टाइम हमने 15A और 15B पार्ट देखा। उसी के साथ चैप्टर नंबर 3 का थ्योरेटिकल पोर्शन हर एक टॉपिक का JEE नीट मोस्ट ऑफ कवर हो गया। अभी भी मैंने बोला था एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें बचा कुचा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी कवर करेंगे। सो टुडेज लेक्चर is very important lecture, particularly for shortcuts, some JEE NEET related questions, latest 2020 JEE NEET related questions. So friends, today we would like to think about important shortcuts for JEE NEET. ऐसे शॉर्टकट्स जो जिसे कह सकते हैं कि हम सीधे अप्लाई करें तो हमारा जो टाइम बचे और न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली हो जाए। तो मैंने सोचा कि एक लेवल ए भी बना दिया जाए, एक लेक्चर ऐसा भी कंसीडर किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट रेजिस्टेंस। तो शुरू करते हैं रेजिस्टेंस के रिलेटेड। सपोज आपको ऐसा एक वायर दी गया है, सपोज देयर इज अ वायर, दिस इज द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, सिंगल वायर इज गिवन, सपोज लाइक दिस वन, एंड वी वुड लाइक टू फॉर्म अ पॉलीगॉन। आज में एग्जांपल देखेंगे। सपोज from this wire or single wire a polygon of side n is already formed. Polygon of sides n, you can see that is already formed. तो अपने ऐसा polygon बनाया जिसका number of sides है n. You can think about n, that means depends upon types of polygon. For example, pentagon, then 5, square, then 4, triangle, then 3, hexagon, then 6. So a polygon of sides n, you can see that is formed by using this type of a wire of resistance R. आपको एक वायर दिया है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसमें से हमने एक पॉलीगॉन बनाया। तो उस पॉलीगॉन के कोई भी दो एडजेसेंट कॉर्नर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इधर जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग पेंटागन ड्रॉ करें, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों पॉइंट्स का नेट रेजिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट्स का, सो टू एडजेसेंट, सो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस R नेट across two adjacent corners or 2 points. So it can be found by using this shortcut, n minus 1 upon n square into R. Very IMP. Net resistance across two adjacent corners or points for this type of polygon of sides n. It is, you can see that here simply n minus 1 upon n square into R. Okay, so now we have to think about next point. Here n simply represent the number of sides. Suppose one example, if you consider, suppose there is a wire of resistance R is given, and now they ask the question that a triangle is formed by using this wire. ऐसा जो वायर दिया है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसमें से ऐसा एक ट्रायंगल बना है ABC. Okay, then find the net resistance across AB or BC or AC. Adjacent points you can see there. So net resistance across adjacent points can be found by using this shortcut, n minus 1 upon n square, where n representing number of sides. Here number of sides 3 you can see. So use here 3. So 3 minus 1 upon n square, that means 3 square into capital R, the resistance of the wire. So 3 minus 1 2. So obviously final answer 2R by 9. तो इस ट्रायंगल के कोई भी दो एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच का नेट एक रेजिस्टेंस इतना होगा। एक और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। सपोज समटाइम्स इंस्टेड ऑफ वन सिंगल वायर दे प्रोवाइड n number of wires, you can see 1 2 3 n number of wires given having equal resistance, and by using this n number of wires a polygon is formed. Then what is the net resistance across two adjacent points or two adjacent corners? पहला केस और दूसरा केस में फर्क है। पहला केस है उसमें सिर्फ एक वायर दिया, उसमें से पॉलीगॉन बनाना है, जबकि दूसरा केस है उसमें n नंबर ऑफ वायर्स दिए, उसको जोड़ के पॉलीगॉन बनाना है। तो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस? ओनली वन डिफरेंस, हियर n स्क्वायर, हियर ओनली n, you can see. So net resistance across two adjacent corners or points can be obtained by using n minus 1 upon n into R. चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। You can see there is example. Suppose 3 wires given, 3 wires having resistance R, that means equal resistance. Now by using these 3 wires, there is a triangle and triangle is formed. So what is the net resistance across any two
corners or 2 points. So it can be found by using this shortcut n minus 1 upon n. Here n represents number of sides. Number of sides here 3. So here instead of n we have to set up 3. So 3 minus 1 upon 3 into r. That means 2r by 3. So single wire then 2r by 9. But 3 wires and triangle then 2r by 3. So these shortcuts are very IMP. So don't forget, these are the most IMP shortcuts for you can see MCQ point of view. तो इसको याद रखना है. तो आज अपन लोग ऐसे शॉर्टकट्स कवर करेंगे जो फ्यूचर में काम में आए. सपोज एक दूसरा शॉर्टकट इधर दिया है. सपोज देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स गिवन. सपोज एक बॉक्स है, उसमें n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, but resistance of this each and every resistor is same. That means R. Suppose इधर जो बॉक्स है उसके अंदर 1000 रजिस्टर्स है, मगर हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस सपोज 100 ओम है. तो इसी तरह ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस यू कैन सी आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर इक्वल रेजिस्टेंस. सो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू ऑब्टेन डिफरेंट रेजिस्टेंस it can be found by using this shortcut 2 raised to n minus 1. मतलब क्या, आपको सपोज 3 रेजिस्टर्स दिए. नाउ विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ विल रिमूव दिस पोर्शन बिकॉज़ इट इज नॉट नाउ इंपॉर्टेंट फॉर अस और नॉट रिक्वायर्ड. अब मैं ये समझाता हूँ. देखो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए मगर ये आईएमपी. सपोज आपको 3 रेजिस्टर दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, but having equal resistance. That means suppose 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. So by using these 3 resistors, how many number of possible combinations to obtain different resistance? तो मुझे अलग अलग रेजिस्टेंस डिराइव करने हो तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, मगर डिफरेंट रेजिस्टेंस, हर एक बार पे डिफरेंट रेजिस्टेंस चाहिए. तो अपन लोग ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. सो 2 हियर n इज द नंबर हियर 1 2 3, से पुट हियर 3. सो 3 minus 1 that means 2. So 2 square यानी 4. So possible combinations to obtain different resistance it is 2 raised to n minus 1. Check it. ये 3 रेजिस्टर को मैं पहले तो सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो 2 2 2 6 हो जाएगा. फिर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो 2 2 2 यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा ऑब्वियसली. अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं इसमें से 2 को पैरेलल में रखेंगे, एक को सीरीज में, या 2 को सीरीज में रखेंगे, और सॉरी जिसे कह सकते हैं कि एक को सीरीज में, बाकी 2 को जिसे कह सकते हैं पैरेलल में, क्योंकि डिफरेंट रेजिस्टेंस चाहिए. इसका और इसका आंसर जिसे कह सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस जिसे कह सकते बन सकते हैं मोस्ट आईएमपी. सो you can see here the possible combination to obtain different resistance it is 2 raised to n minus 1. But same story, if there are n number of wires but different resistance, then number of possible combinations simply given by equation 2 raised to n. अगर ये 3 रेजिस्टर्स है और तीनों का जिसे कह सकते हैं कि अलग अलग वैल्यू देते हैं 2 3 और 4, तो ऐसे 3 रेजिस्टर्स को कितने तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन थ्रू कनेक्ट करके अपन लोग डिफरेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली इसके कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं 2 raised to n. सो हियर n रिप्रेजेंट 3, सो 2 raised to 3 दैट मींस टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं अलग अलग. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वी हैव डिस्कस. ओके, नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. Next point very IMP for us, it is we can say that resistivity. तो concentration required friends, पहले resistance का डिस्कशन करते हैं, फिर पावर जो अपना पॉइंट था उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कशन में बाकी रखे वो कवर करते हैं. Just concentration required, most IMP, resistivity. Resistivity related point, suppose there are 2 wires given, number 1 and it is connected in series with the number 2. This is the first wire, second wire. Let the resistivity of these 2 wires, length here given L1 and here L2, and having we can say that resistivity, first का resistivity ρ1 है, second का ρ2, and they both are connected in series. You can see series.
For this type of combination, what is the net resistivity? So net resistivity, rho net can be given by using equation rho 1 L1 plus rho 2 L2 upon, we can say that L1 plus L2. You can see this is the most IMP formula. ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है. Whenever two wires having length L1 L2 and resistivity rho 1 and rho 2 are connected in series, then net resistivity can be found by using this equation. इसके स्पेशल केसेस देखे. सो केसेस नंबर 1, if L1 is equal to L2, first question, if L1 is equal to L2, then what is the net resistivity? If L1 is equal to L2, then obviously here 2, here L1 L2 related point, then final answer आएगा rho 1 plus rho 2 divided by 2. You know that very well. What is the meaning of this word? It is called simply the arithmetic mean. Arithmetic mean of resistivity. तो ये आपने देखा हुआ है. इसके ऊपर से इसका कंडक्टिविटी पूछे. कंडक्टिविटी, सो कंडक्टिविटी सिग्मा, इसका रेसिप्रोकल सिग्मा, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना है. तो आंसर आएगा जिसे कह सकते हैं 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा, सॉरी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. So 2 sigma 1 sigma 2 upon sigma 1 plus sigma 2. So this is conductivity. For this case you can see that. So very important point. If L1 is equal to L2 is equal to L, then net resistivity. And second case, if L1 is equal to L2 is equal to L, then what is the conductivity? It is the formula of conductivity, you can see. So very important point. इसमें एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं ताकि कंसेप्ट बने. ये सब कुछ रिवाइज करना है. बाकी मोस्ट ऑफ हमने कवर कर लिया है. इसके रिलेटेड चांसेस बनते हैं कम, मगर फिर भी दिमाग में होना चाहिए. नाउ सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट रेजिस्टिविटी, दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ वी कैन से द टू वायर्स, these are the two wires number 1 and 2. Two wires having resistivity rho 1 and rho 2, and they are connected in parallel. You can see that having area of cross section A1 and A2. So two wires having resistivity rho 1 and rho 2 and area of cross section A1 and A2, and they are connected in parallel. Then what's the net resistivity? Then net resistivity can be found by using rho net is equal to rho 1 rho 2 upon A2 rho 1 plus A1 rho 2, and here A1 plus A2. So this is your shortcut. You can see for the net resistivity. Net resistivity can be found by using this equation. But in which circumstances, whenever two wires having resistivity rho 1 and rho 2 and area cross section A1 A2, then net resistivity can be found by using this equation rho 1 rho 2 inside the bracket A1 plus A2 upon A2 rho 1 plus A1 rho 2. इसका भी स्पेशल केस है. सो स्पेशल केस अप्लाई करें. इफ A1 is equal to A2 is equal to A, that means two wires having same area cross section, then what is the net resistivity? तो A1 A2 की जगह A कर दो, यानी कि 2A हो जाएगा. इसमें से ये कॉमन निकल जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2. याद करो, ये भी मोस्ट आईएमपी. इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोस्ट आईएमपी. So these are the two very important concepts for resistivity and net resistivity. So just analyze. ओके, सब कुछ मोस्ट टाइम भी है. अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वी कैन से दैट पावर. पावर के हमने एक दो पॉइंट्स बाकी रखे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. And then we start, we can say that some questions based on, we can say the latest exam. Now today, first of all, we would like to think about power loss. Very important point. The formula for power loss. Power loss for long distance transmission. Very very IMP. ये 2 मार्क्स की थियरी भी बन सकती है. टॉपिक ऑलरेडी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, मगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के टाइम पे इसको नहीं रखा था क्योंकि ये
एक शॉर्टकट के तौर पे लेना है। सपोज दिस इज योर स्टेशन, यू कैन सी पावर स्टेशन, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड टू, वी कैन से दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड होम। सपोज अपन लोग अपने घर की बात करें, उसमें कोई जिसे कह सकते हैं डिवाइस अपन लोग यूज करने वाले हैं। सो दिस electricity simply supplied to this device or not, but you know that very well this electricity is supplied or transmitted, you can see, towards this device or at the home or factories, but because of or by using wire or cable, you know that this is cable, and this cable obviously offered some resistance. It is called resistance offered by cable. copper एल्यूमिनियम के वायर यूज होते हैं, मगर वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और हमारे जानी दुश्मन है, और इसके कारण पावर का लॉस होने वाला है। अब कितना पावर का लॉस होगा वो कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले जो यहाँ पे डिवाइस है उसका पावर P है और उसका जो सप्लाई वोल्टेज V है। तो अपन लोग तो जानते हैं पावर P इज इक्वल टू VI। तो ये जो डिवाइस है यहाँ पे अपने घर में जो डिवाइस रखा है उसका पावर रेटिंग P है और उसका सप्लाई वोल्टेज भी है। अपन लोग रेटिंग को जानते हैं, रेटिंग के ऊपर से हमें एक इंफॉर्मेशन और मिलती है, आप जानते हो, और वो है उसका रेजिस्टेंस। तो ये डिवाइस का रेजिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगी और ये डिवाइस तक पहुंचे तो कितना पावर लॉस हो वो हमें कैलकुलेट करना है। सो ऑब्वियसली पावर लॉस, it is, you can see that P loss, power loss is equal to simply I square RC. What do you mean by RC? It is the resistance offered by cable. जब ये इलेक्ट्रिसिटी केबल में से पास होकर डिवाइस तक पहुंचे तब इतना पावर लॉस होगा, and this amount of power get dissipated, स्वाहा, but I, so from this equation I is equal to P by V. So power loss, you can see it is also denoted by capital L. L, that means loss. You can see here capital L. So power loss I square, that means P square by V square into RC. This is the marvelous equation you can see. P is the power of, you can see that the given or considered device. V is the supply voltage and RC is the resistance offered by cable. Very IMP. So from this equation you can see for long distance transmission whatever the power is lost, this power loss is inversely proportional to the square of supply voltage. यानी जितना सप्लाई वोल्टेज ज्यादा उतना पावर का लॉस भी कम, तो बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल। इसीलिए you know that very well, electricity is transmitted whenever electricity is transmitted up to long distance. So for long distance electricity transmission, always transmission is done, transmission, very important word, transmission is done at very high voltage, most IMP। और पता चला क्यों वोल्टेज ज्यादा रखा जाता है, वोल्टेज ज्यादा रखने से पावर लॉस कम होता है। दूसरा इधर देखो ये फॉर्मूला है, इधर है I square, so power loss also directly proportional to square of current। यानी हो सके उतना करंट कम रखो या हो सके उतना वोल्टेज ज्यादा रखो। करंट कम करना कभी कभार हमारे हाथ में नहीं होता है, मगर वोल्टेज अपन लोग ज्यादा या कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। वी विल कंसिडर इट, we will study about it in chapter number 7, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प लेके वोल्टेज बढ़ाएंगे या कम करेंगे। सो यू कैन सी बिकॉज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज, अगर यहाँ पे वोल्टेज हाई रख के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाए तो पावर लॉस बहुत ही कम होता है। ये फॉर्मूला आपसे याद रखना है, दिस इज द मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला फॉर पावर लॉस। यू कैन सी वेरी आईएमपी पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो जरा ध्यान रखना, ये अपन लोग नेक्स्ट एग्जाम में कंसीडर करेंगे। नाउ यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, पावर लॉस रिलेटेड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। Now friends, we'll think about, we can say that few more important point about EMF related। तो कुछ एक बेहतरीन पॉइंट है, you can see there is a battery of EMF epsilon and internal resistance R।
Now this battery is connected with resistor R1. ये बहुत ही फेमस और IMP शॉर्टकट है, बहुत जगह पे यूज होता है क्वेश्चन। शॉर्टकट लोगों को कम पता है मगर ये इंपॉर्टेंट। So there is a battery of EMF epsilon and internal resistance R. It is connected with external resistance R1. Then obviously I1 amount of current flows through this R1. Now this battery is disconnected, and it is again you can see that connected with resistance R2. Here another resistor R2, external resistance R2, and you can see the current passing through this resistor. It is simply I2. So in this situation, what is the internal resistance of a battery? This is your shortcut. So it can be found by using this shortcut. I2 R2 minus I1 R1. I2 minus, you can see that I1. Okay, this is the most timely point. Don't forget I2 R2 minus I1 R1 upon, we can say I1 minus I2. डिराइव भी किया जा सकता है मगर डिराइव करने की जरूरत नहीं, ये शॉर्टकट आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके ऊपर से ईएमएफ भी पूछे, सो व्हाट इज द, वी कैन से दैट ईएमएफ ऑफ बैटरी। सो इट इज, यू कैन सी दैट वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज I2 R2 की जगह आप जिसे कह सकते हैं अपन लोग अभी वाला जो पॉइंट डिस्कस किया था वो लिखेंगे लाइक रेजिस्टिविटी रिलेटेड की तरह I1 I2, you can see R2 minus R1 upon I1 minus I2. This is the most IMP shortcuts, particularly for this scenario. Whenever battery of EMF epsilon internal resistance R is connected with external resistance R1, then I1 current flows. Same battery is connected with external resistance R2, then I2 current flows. Then how can you find EMF and internal resistance of the battery? Most IMP point. तो ये भी जोरदार पॉइंट यू कैन सी। तो ये सभी पॉइंट्स को कंसीडर करना जरूरी। अब कुछ और पॉइंट्स जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और पॉइंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी कभार इसके भी क्वेश्चन पूछते हैं। व्हेनेवर बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, सो इट इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर चार्जिंग करंट। ये क्या चार्जिंग करंट, सपोज ये जिसे कह सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड याद करो, ये इलेक्ट्रोलाइट। और चार्जिंग में अपन लोग क्या करते हैं ये भी आपको पता ही है। इन द केस ऑफ चार्जिंग, whatever the battery having EMF epsilon, it is connected with a source of potential V, और V should be greater than epsilon। और अपन लोग जानते हैं कि चार्जिंग में करंट एंट्री लेता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू करंट एंट्री ले और नेगेटिव इलेक्ट्रोड थ्रू करंट बाहर आए, इट इज कॉल्ड चार्जिंग। मगर करंट को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रखा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। सो चार्जिंग करंट का ये शॉर्टकट याद रखना है, V माइनस एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। मोस्ट IMP ये भी डिराइव किया जा सकता है मगर अपने को इसकी कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट टाइम पे V इज द पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ सप्लाई, एप्सिलॉन इज द EMF ऑफ द सेल, R is the external resistance and small r is the internal resistance. So if this amount of current we have to flow, if this amount of current is flow, or I can say that passing through this cell, then cell can be charged. So this is the required current particularly for the charging of the cell। तो ये भी IMP पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं, ये सब शॉर्टकट्स याद रखने के हैं, डोंट वरी। अब कुछ क्वेश्चंस पेपर में मैंने देखा है, ये एफिशिएंसी जिसे कह सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, तो आप लास्ट लेक्चर जरा देखना बराबर। तो ये सभी पॉइंट्स को हमने देखा। अब अपन लोग इस क्वेश्चन यानी चैप्टर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। अभी भी जो भी क्वेश्चन और पॉइंट्स अपने दिमाग में आते जाएंगे शॉर्टकट्स, वो अपन लोग कवर करते जाएंगे। कुछ जिसे कह सकते हैं कि एक दो शॉर्टकट और मैं इधर देता हूँ मोस्ट टाइम पे बैटरी रिलेटेड। If two cells, this is, you can see that cell number 1 and this is cell number 2 having EMF epsilon and epsilon, two cells having same EMF but internal resistance 0, most IMP, and it is connected with this type of external resistance R, you can see external resistance R,
then what is the equivalent EMF? It is always equal to epsilon, most important term. और अगर ये दोनों की polarity, if you think about this, next you can see that connection, same EMF, zero internal resistance, then equivalent EMF always zero. तो ये भी concept याद रखने के है, most important term. So friends, you can see, फिर हमने जिसे कह सकते हैं कि एक और रजिस्टर वाला पॉइंट देखा था, विस्टन ब्रिज. तो चेक करो, ऐसा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 5, 10, 10, 5 और 5, और इसका मैंने शॉर्टकट दिया था. इसका एक और शॉर्टकट है, अगर इसका नेट रेजिस्टेंस पूछे, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, तो सिंपल जिसे कह सकते हैं कि आपको ये सभी रजिस्टर से उसका एडिशन कर दो, सभी रजिस्टर का, बिंदास. सो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर्स? तो 5 + 10 + 5 + 10 + 5, सभी रजिस्टर्स का एडिशन करो तो देखो 15 और 20 यानी 35. सो वेरी इजी फॉर दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, एड ऑल रजिस्टर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स. हाउ मेनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स? 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5, 7 ओम. चेक करना, सीधा आंसर आएगा. यू कैन सी 7 ओम सीधा आंसर. तो ये भी मोस्ट टाइम की टोटल रेजिस्टेंस, इसको याद रखने का फंडा, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. सो दिस शॉर्टकट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे फ्रेंड्स बहुत ही अनगिनत शॉर्टकट्स होते हैं, मगर ज्यादातर जो अप्लाइड शॉर्टकट्स है वही अपन लोग ने कंसीडर करने की कोशिश की है. अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर में जाते हैं. ये सब है वो शॉर्टकट्स का कोई फायदा नहीं रहता है जब तक वो दिमाग में ना हो. इसलिए बी ग्रुप वाले हो या ए ग्रुप, इसको कंटिन्यूअसली मेमोराइज करो, दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करो, क्योंकि नीट और जेडबल को क्रैक करने का अगर पहला पड़ाव कोई वो है तो फॉर्मूले पावर, जितने हो सके उतने बेस्ट फॉर्मूले पावर आपके दिमाग में होंगे, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ आप आगे बढ़ोगे. क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट का शॉर्टकट ऐसा है या फॉर्मूला ऐसा है, तो आप कुछ सोच सकोगे, फॉर्मूले अप्लाई कर सकोगे और उसमें से कुछ फ्रूटफुल आउटपुट मिलेगा. सो अपन लोग अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने शुरू करते हैं. मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे, तो वो शुरू करते हैं. और क्यों वो सिलेक्टेड, वही क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए, वो अपन लोग डिस्कस करते हैं. सो वी स्टार्ट. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. अब अपन लोग थोड़े क्वेश्चन और सोल्व करते हैं. शॉर्टकट्स तो अपने लोगों ने देखे, मगर फिर भी जितने मिलते जाएंगे ऐसे डिस्कस करते जाएंगे. अब देखो, अपन लोगों ने लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, पावर रिलेटेड, वो सब JEE 2014 वो सब. ओके, अब पहला क्वेश्चन में देता हूँ जो बहुत ही इजी. मैं नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसका सिलेक्शन किसके बेस पे हुआ है वो लास्ट में डिस्कस करते. देयर आर 4 रजिस्टर्स, 1 2 3 4 रजिस्टर्स, 15 ohm, then 12 ohm, then 4 ohm, and then 10 ohm. And you can see there is a galvanometer. Okay, and this is the type of voltage application, or voltage is applied across this point. Okay, question क्या है? In cyclic order to form a Wheatstone bridge. कर दिया Wheatstone bridge. Now the resistance in ohm that should be connected in parallel with 10 ohm to balance the Wheatstone bridge is blank. तो Wheatstone bridge को balance करना हो, that means current passing through this galvanometer becomes 0. So for that, resistance R is connected in parallel with this 10 ohm. तो क्वेश्चन यही पूछा है, the resistance that should be connected in parallel across the 10 ohm resistor such that current passing through galvanometer becomes 0. Once again same methodology, वीडियो पॉज करो और अपने आप जिसे कह सकते सोल्व करना शुरू करो. चलो स्टार्ट. ऑब्वियसली इसको सोल्व करते हैं. सबसे पहले Wheatstone ब्रिज इन बैलेंस्ड
condition of bridge, you know that what is the balance condition. तो इधर आप देखो 15/12, कोई बोले सर 10/15 and 4/12, ये प्रॉब्लम आपका देखो विस्टन ब्रिज का स्ट्रक्चर बराबर याद रखो. दिस इज योर विस्टन ब्रिज. काफी लोग ये पॉइंट भूल जाते हैं. ये आपका विस्टन ब्रिज था देखो. तो गैल्वेनोमीटर जिसे कह सकते हैं ये R1 R2 और R3 R4. सो इसका रेशियो तो अपने को ये हर बार यही याद रखना है, गैल्वेनोमीटर के जो दो एंड से जो पॉइंट्स के साथ कनेक्ट हो वही रेशियो कंसीडर करना है. तो इधर गैल्वेनोमीटर ये दोनों पॉइंट्स के साथ कनेक्ट, इधर गैल्वेनोमीटर ये दोनों पॉइंट्स के साथ. So in balance condition obviously 15/12. So we write here 15/12. Now I will remove this portion. So in balance condition that means current passing through galvanometer is 0. So 15/12 is equal to इसका resistance divided by this resistance. So this both are in parallel. So parallel that means 10R upon 10 plus R divided by 4. ऐसा हो जाएगा 15/12 upon 10 ratio of this R into 10 upon R plus 10 because of parallel upon 4. In short 4 is side. So 4 into 15/12 10R upon 10 plus R. So 3 3 5. You can see the 15 and 5 2 जा. तो इधर को कुछ बचा नहीं 1. So 2R upon 10 plus R. So finally I can write 10 plus R is equal to 2R. So 10 is equal to R. In short 10 ohm. Okay, तो ये मोस्ट टाइम भी पॉइंट है. तो इधर 10 ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करो तो करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम 0. Why I have selected this question? Because it is already asked in January 2020. JEE main January 2020 you can see. तो अपन लोग आज लेटेस्ट 2020 उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में से. ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट. वापस क्या करना है आपको, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले अपने आप ट्राई करो. नाउ वन मोर. अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग. 2 बैटरीज of same EMF 10 volt, internal resistance 20 ohm and 5 ohm are connected to load resistance 30 ohm. मैं diagram बता रहा हूँ. You can see these are the two batteries. 10 volt having internal resistance 20 ohm. Then again 10 volt and having internal resistance 5 ohm. And it is connected with load resistance 30 ohm. Ready? Next question. Now an unknown resistance X is connected in parallel to the load resistance. Unknown resistance is connected to this 30 ohm resistor in parallel. Find the value of X. Find the value of X so that potential drop of a battery having internal resistance 20 ohm becomes 0. तो X की वैल्यू फाइंड करो ताकि ये जो 20 ohm इंटरनल रेजिस्टेंस वाली ये जो बैटरी है उसका पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0 हो जाए. और आई कैन से यस द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ बैटरी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम 0. तो ये क्वेश्चन है बेहतरीन. एंड दिस इज आल्सो आस्किंग वी कैन से दैट जनवरी 2020 JEE मेन. तो ये 2020 सीरीज का एक क्वेश्चन है. इसमें दम है दोस्तों. राइट, हमारे पास शॉर्टकट्स भी है, हमने अप्लाई किए हुए फॉर्मूले भी है. आप जो अप्लाई करना चाहो कर सकते हो. टेक योर टाइम. ओके, तो अपन लोग सॉल्व करते हैं. ये दोनों बैटरी से ऑलरेडी हेल्पिंग कंडीशन में. तो करंट है वो इधर से निकलेगा I जितना करंट, इसमें से I1 करंट पास होगा, इसमें से I2. तो अपन लोग तो जानते हैं कि सिंपली आई कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I1 मतलब सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 30 अपॉन रेजिस्टेंस. इधर का PD, मगर ये दोनों ब्रांचेस तो पैरेलल है. दैट मींस PD अक्रॉस 30 ओम रजिस्टर एंड PD अक्रॉस X ओम रजिस्टर रिमेंस है. तो करंट फाइंड I1 I2 मिल जाए तो केस पूरा हो जाए. तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, वो लोगों ने बताया है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 10 वोल्ट बैटरी इज ऑलरेडी 0. सो ये मैं बैटरी को इधर ड्रॉ कर रहा हूं. देखो दिस इज 10 वोल्ट बैटरी एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम.
What is the PD across these two terminals or these 2 points AB? Potential difference across AB is 0. What is the value of X such that V across फर्स्ट बैटरी और 20 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी बिकम 0, ऐसा बोला है। तो अपन लोग इसके टर्मिनल्स का पीडी मतलब इसको सिंपली टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो ये टर्मिनल वोल्टेज VAB हो जाएगा 0। इधर मैं कर देता हूँ A, इधर B और इधर C, यानी VAB यानी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट बैटरी एंड VBC यानी B और C के बीच मतलब सेकंड बैटरी। मगर इधर बोला है टर्मिनल वोल्टेज फर्स्ट बैटरी का 0 हो रहा है, यानी जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है उसका हो रहा है। तो हमने VAB 0 ले लिया। अब टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला याद करो, एप्सिलॉन माइनस IR। VAB तो 0 है, एप्सिलॉन ऑलरेडी 10 है, करंट का पता नहीं है, रेजिस्टेंस 20 है, ये रहा रेजिस्टेंस। तो करंट मिल गया हमें 10/20 मतलब 0.5 एम्पियर। मतलब यहाँ से 0.5 एम्पियर गॉगल्स पहन के निकला, मगर यहाँ पे करंट है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अपने को जिसे कह सकते हैं कि I1 I2 फाइंड करना है, मगर I मिल गया। अब अपन लोग इसके रिलेटेड पीडी भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखना जरा न्यूमेरिकल में दम क्या है, इधर का पीडी, इधर का पीडी और इधर का पीडी सेम होगा। व्हाई? बिकॉज दिस ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC। ये देखो AC यहाँ से यहाँ तक, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC is equal to potential difference across AB plus potential difference across BC। यानी ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज प्लस सेकंड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, मगर फर्स्ट बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज तो वो लोगों ने बोला है 0। तो सेकंड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन माइनस IR। तो VAC यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ANC इज इक्वल टू एप्सिलॉन है सेकंड बैटरी का 10। करंट कितना पास हो रहा है, करंट तो मिल गया ना 0.5, और इसका रेजिस्टेंस है सेकंड बैटरी का 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, नाउ यू कैन सी हियर 5 cancel because of 10, you can see, sorry 25, 10 minus 2.5 is 7.5 volt। check it, 5 into 0.5 2.5, तो 7.5 वोल्ट होगा इधर। तो अब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में 7.5, तो इधर भी 7.5, इधर भी 7.5। तो अब I1 तो इजी हो गया। I1 दैट मींस एज पर ओम्स लॉ पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, इधर भी पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। मगर पोटेंशियल तो इसका क्या है, व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 30 ओम, 7.5 अपॉन R1 30 प्लस VB X के लिए कितना है, V 7.5 अपॉन X और करंट, मगर करंट की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव फाउंड 0.5। तो अल्टीमेटली अपन लोग लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं 0.5 7.5/30 7.5/x। अब इसको सोल्व करना है और x का आंसर लाना है, सो इट वुड बी ऑब्वियसली 30 ओम आंसर आएगा मोस्ट IMP। आप इसमें ऐसा कंसेप्ट ना सोच पाओ तो आप लोगों को जिसे कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जॉब पे जाना पड़े, यानी एक एक बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। मगर एक बेस्ट जिसे कह सकते पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो थिंक अबाउट इट, यू कैन सी इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन जनवरी 2020। तो JEE मेन 2020 के सब क्वेश्चंस चल रहे हैं। नाउ विल थिंक अबाउट वन मोर। तो कंसेप्चुअली आप देखो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये हमने कर लिया है, मगर देखते फिर भी शायद तक। ओके, नाउ देयर इज अ डायग्राम एंड वी हैव टू फाइंड द करंट पासिंग थ्रू BC ब्रांच। चलो ये आपको भी ट्राई करना है वापस। दिस इज आल्सो आस्क्ड, वी कैन से दैट जनवरी 2020। ओके, सो this is BC point and we would like to find current through BC. Find the current through BC. This is, you can see that a battery of 20 volt, there is 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm and 3 ohm. Start. What's the target? Find the current through this BC branch. Find current through BC. Current
we can say that in the wire BC, this is your target. Take your time. Okay, so lots of time obviously you taken, so now think about it. Very interesting question. तो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं ऑब्वियसली। ये सब क्वेश्चन को देख के एक बात मैं बता दूं, अगर आप वापस हिस्ट्री में जाओ, दैट मीन्स जितने जेडब्ल्यू के पेपर है वो खंगालो, तो आपको ऐसा क्वेश्चन जेडब्ल्यू आईआईटी में भी दिया हुआ है, चेक करना। तो देखो आप वहाँ से रिपीट हुआ, मतलब पैटर्न पकड़ो बराबर। अगर आप जिसे कह सकते हैं कि 15 साल के पेपर्स को बराबर खंगालो, तो मुझे लगता है पैटर्न 50 to 60% रिपीट हो रही है। इवन क्रॉस सेक्शन भी हो रहा है, मतलब डायगोनल जिसे कह सकते हैं कि पैटर्न भी शिफ्ट होती है। जेडब्ल्यू का नीट में पोर्शन जा रहा है, नीट का कुछ पोर्शन जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अपन लोग देख सकते हैं कि ये सब कुछ रिपीट कहाँ ना कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले बी और सी है, वहाँ पे कितना करंट, पहले तो टोटल सर्किट का करंट फाइंड करना हो तो यहाँ करंट आई निकलेगा। सो थिंक अबाउट दिस पॉइंट। इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर दूं, यानी आपको पता चले, इसलिए देखो ऐसा। नाउ यू अंडरस्टैंड 1 4 और B और C simply connected by means of wire, that means B and C common in 2 3 रेडी। अब देखो सबसे पहले यहाँ से I करंट आएगा, तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? दिस 1 and 4 आर कनेक्टेड इन parallel, so its net resistance I can write directly, it is 4 by 5. And what is the net resistance? 2 and 3, 2 and 3 are also connected in parallel, so its net resistance 6 by 5, so either 6 by 5, so 2 4 by 5 here and here 6 by 5, but now 4 by 5 and 6 by 5 are connected in series, तो total resistance होगा 4 by 5 plus 6 by 5 यानी 10 by 5 यानी 2 ओम। यू कैन सी नेट रेजिस्टेंस 2 ओम। तो अब अपने को करंट मिल गया, टोटल करंट मतलब टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2, दैट मींस 10 एम्पियर करंट यहाँ से गॉगल्स पहन के निकला, देखो 10 एम्पियर। अब जरा देखो इधर रेजिस्टेंस देखो, इधर 1 ओम है जबकि इधर 4 ओम है, मतलब करंट यहाँ से रुक जाएगा दो रास्ते प्यार के। तो कौन से रास्ते पे कितना करंट जाएगा वो हम लोग जानते अच्छी तरह है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। तो यहाँ जो कर्व रेजिस्टेंस है उससे 4 गुना रेजिस्टेंस यहाँ पे, मतलब जो करंट यहाँ पे फ्लो होता होगा उससे करीबन 4 गुना करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़े करंट कम। और ना पता चले तो मैंने बताया इसको I1 I2 कह दो, I1 और I2 कह दो, और I1 I2 कहते अपन लोग I1 I2 भी फाइंड कर सकते हैं। मगर टोटल करंट जो आई है उसका जिसे कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि टोटल 1 और 4 दैट मींस 5 पार्ट्स पे कंसीडर में देखे तो इधर जिसे कह सकते हैं कि जो करंट पास होता होगा वो होगा 4I/5 और इधर होगा I/5। देखो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्यों इधर 4I/5, ये दोनों का टोटल करो 4I/5 प्लस I/5 यानी कि सिंपली I। तो ये मैंने रेजिस्टेंस के मुताबिक, मगर आपका दिमाग ऐसा ना चले तो थोड़ा लेंथी बनाते। अब I1 I2 फाइंड करने का शॉर्टकट मैंने आपको दिया हुआ है, IR2 अपॉन R1 प्लस R2।
अब I की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 10, R2 हमारे पास है 4, इधर होगा 1 + 4, सो 40 डिवाइड बाय सिंप्लीफाई यानी 8 एम्पियर। तो मैंने बोला इसमें देखो, इसमें से 8 एम्पियर, तो इसमें से कितना एम्पियर होगा, 4 में से 2 एम्पियर। तो अब ये देखो 4 एम्पियर, यहाँ पे डायग्राम देखो 8 एम्पियर है, 1 ओम में से फ्लो के इधर आएगा, इसी तरह इधर से 2 एम्पियर फ्लो के इधर आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद सिनेरियो देखो, ये करंट यहाँ पे आ रहा है, ये करंट यहाँ पे आ रहा है। अब वापस जिसे कह सकते हैं कि यही करंट बन जाएगा I, यानी 8 + 2 यानी 10। तो अब ये 10 वापस डिस्ट्रीब्यूट होगा B और C यानी कि ये दोनों के बीच में। तो अब इसमें कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो I1 इसको मैं कह देता हूँ I1, तो ये R1 R2, तो अपन वापस इधर अप्लाई करें तो इधर I तो वापस वही का वही है 10, मगर R2 देखो 3 एंड हियर R1 + R2 यानी 2 + 3, सो 30 डिवाइड बाय 5 यानी 6 एम्पियर। मतलब समझो बराबर कि ये ब्रांच में कितना करंट, 8 में से जिसे कह सकते हैं इस ब्रांच में आते 6 एम्पियर, तो इधर कितना है 2 एम्पियर, तो इस ब्रांच में कितना हो जाएगा, चेक इट। ये इंटरेस्टिंग केस है, जोरदार। टोटल करंट तो बाहर आते हो 10 एम्पियर ही रहेगा। देखो इधर से 8 गया, इधर से 2 गया, तो 8 + 2 10। अब B और C के पास आया 10, इसके दो पार्ट्स बनेंगे, इसमें से जा रहा है 6, तो ऑब्वियसली इसमें से जा रहा है 4, तो 6 4 10 हो गया नहीं। तो आप देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपली करंट है वो यहाँ 8 एम्पियर था, B के पास आने के बाद ये जो रजिस्टर है 8 में से क्या होगा, एग्जैक्ट देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो जैसे ही करंट इधर 8 एम्पियर आएगा, 8 एम्पियर में से 6 एम्पियर इस तरफ जाएगा, 2 एम्पियर इस साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से 2 और इधर से 2 वापस हो गया 4, ये देखो 4 इसमें से 4 एम्पियर मोस्ट टाइम पे। तो सिंपली B के पास आया कितना करंट, 8 एम्पियर, B में से जाया कितना करंट, 6 एम्पियर, तो आ रहा है 8, जा रहा है 6, मतलब जिसे कह सकते हैं कि 2 एम्पियर है वो भेज रहा है वो B2C, पता चला कि नहीं, B2C, और यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा, और ये जो 2 एम्पियर 4 ओम का रजिस्टर है वो करंट दोनों मिलेंगे, 2 एम्पियर C के पास मिले, 2 + 2 4, तो चेक करो 4 ही बन रहा है, 6 इसमें से 6 तो इसमें से 4। सो व्हाट इज द करंट फ्लो फ्रॉम, वी कैन से द B2C, obviously current passing through BC wire, it is simply 2 ampere। जबरदस्त। This is you can see that the January 2020 related question friends, कंसिडरेशन में लेने लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी जिसे कह सकते हैं कि पूछ चुके हैं, सो बी अलर्ट अबाउट इट। ओके, अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं ताकि आपके फंडे और बने। चलो ये मस्त क्वेश्चन। नाउ इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, ये भी मोस्ट टाइम पे। चलो तो क्वेश्चन सभी सोल्व करने लायक ही है, मगर ये अपन लोग 2020 सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो मुझे जो भी क्वेश्चंस बेस्ट लगे वो मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो नाउ देयर इज अ मीटर ब्रिज का फंडा जानते हो। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ वाज 25 सेंटीमीटर फॉर द सिचुएशन शोन इन द डायग्राम। तो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मीटर ब्रिज को आप अच्छी तरह जानते हो, कोई बोले अच्छी तरह का तो पता नहीं, इधर एक गैप है जिसमें रेजिस्टेंस R, फिर आप जानते हो इधर जो गैप है वो रेजिस्टेंस है X, फिर ये अपना जिसे कह सकते हैं मीटर ब्रिज वायर जिसकी लेंथ ऑलवेज होती है 100 सेंटीमीटर, और इधर से गैल्वेनोमीटर, और जॉकी की याद करो ये है लेंथ L, तो ये होगा 100 - L। ऐसा डायग्राम ऑलरेडी दिया गया है। ओके, व्हाट इज द बैलेंस लेंथ, 25, यानी ये 25 सेंटीमीटर है बैलेंस लेंथ, तो ये हो जाएगा 75। ओके, व्हाट इज द मोस्ट टाइम पी पॉइंटर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर, ये जो वायर है उसका लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज हाफ, यानी ये जो रेजिस्टिव वायर है उसका रेजिस्टेंस R इज हाफ, दैट मींस जिसे कह सकते हैं कि डायमीटर अपन लोग हाफ कर देते हैं, रेजिस्टेंस वायर का डायमीटर और लेंथ हाफ कर देते हैं, देन हाफ, रेडी, देन द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इन सेंटीमीटर इज ब्लैंक।
तो इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ 25 सेंटीमीटर, मगर लेंथ और डायमीटर है वो हाफ कर दिया जाए, ओके, ऑफ रेजिस्टेंस आर, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज हाफ, ये जो रेजिस्टेंस आर है उसका लेंथ और डायमीटर हाफ कर दिया जाए तो न्यू बैलेंस लेंथ क्या होगा। तो इनिशियली शुरुआत में तो अपन लोग जानते आर बाई एक्स इज इक्वल टू 25/75, याद करो ऐसा कंसेप्ट है। तो अपन लोग लिख सकते हैं आर बाई एक्स इज इक्वल टू 1/3 और सिंपली एक्स इज इक्वल टू 3r। अब अपन लोग को बोला है आर, तो आर का रेजिस्टेंस अपन लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई, चेक करते जाना बराबर, रो एल लेंथ आ गया, देखो डायामीटर कहां पे भी नहीं दिख रहा है, तो डायामीटर देगा कौन, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला याद करो पाई डी स्क्वायर बाई 4, सो आर इज इक्वल टू 4 रो एल पाई डी स्क्वायर। इन शॉर्ट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो अपॉन डी स्क्वायर, चेक करना बराबर। तो रो अपॉन डी स्क्वायर के मुताबिक अपन लोग पहुंच गए। अब इसमें जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग वैल्यूज रख दे सभी की सभी, यानी कि 4 रो लेंथ हाफ कर देने की है l/2 और डायमीटर भी हाफ कर दे तो d/2 द होल स्क्वायर। तो होगा क्या सिनेरियो, r इज इक्वल टू 4 रो, ओके। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जाओ तो भी कोई टेंशन नहीं, l/2 अपॉन डी स्क्वायर बाई 4। तो अब देखो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चला जाता हूँ ताकि रेजिस्टेंस है वो पता चले अपने लोगों को, डोंट वरी। इधर देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by D square। नाउ न्यू रेजिस्टेंस R dash, लेंथ बिकम्स हाफ एंड D by 2 डायमीटर बिकम हाफ, तो इधर बन जाएगा R dash डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन D स्क्वायर, मगर 2 डिनोमिनेटर में 4 तो 2 टाइम आ जाए, that means new resistance simply 2 times of the initial resistance। देखो डायमीटर हाफ कर दिया जाए और लेंथ भी हाफ, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पहले से 2 गुना। अब नया बैलेंस लेंथ फाइंड करना है, सो विल स्टार्ट, इधर r की जगह लेंगे अब r डैश, सो r डैश बाय x इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l। क्यों l की वैल्यू नहीं, क्योंकि हमें वो फाइंड करनी है। अब r डैश तो हमारे पास है ऑलरेडी 2r, x की वैल्यू हमने फाइंड की 3r और l अपॉन 100 माइनस l, r कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 200 माइनस 2l और 3l, सो 200 इज इक्वल टू 5l, सो l इज इक्वल टू 200 by 5, that means 40 centimeter। You can see this is your answer, most IMP। तो ये क्वेश्चन भी बेहतरीन, and what's the reason, again it is asked in, we can say that January 2020 JEE main exam। तो friends you can see these all questions are very important, बैलेंसिंग लेंथ रिलेटेड काम करना हो तो बेसिक कंसेप्ट का आज कमाल है। तो ऐसा एक आध और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपके फंडे बने। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ये भी बेस्ट है पावर रिलेटेड, ओके। द 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, देखो ये भी लेटेस्ट 2020 रिलेटेड ही क्वेश्चन है, डोंट वरी। जो लोग अभी 2020 में जेईई देने जा रहे हैं वो लोग भी खास से पैटर्न को समझे बराबर, ओके। नाउ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, पहला बल्ब है B1 जिसका रेटिंग है 25 वोल्ट 220 वोल्ट, एंड दूसरा बल्ब है बल्ब नंबर 2 रेटिंग 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। ये हमने कल डिस्कस किया, वोल्टेज सप्लाई आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई। ये बल्ब नंबर 1 and this is bulb number 2 connected in series with supply voltage of 220। series मतलब current remains constant, okay। if the 25 watt and 100 watt bulbs draws power P1 and P2 then what's the power। अगर बल्ब B1 P1 पावर ड्रॉ करता है और बल्ब B2 है वो P2 पावर ड्रॉ करे तो P1 P2 फाइंड करना है। तो अपन लोग सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में देखो कि एक बात है, ये दोनों के रेटिंग्स दे दिए। देखो रेटिंग्स के ऊपर से पहला काम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1,
एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 2। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P1, वो V1 स्क्वायर बाय P1 और V2 स्क्वायर बाय P2। V1 है इधर 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन P1 है 25। सेकंड बल्ब के लिए 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 100। ये दोनों R1 R2 मिल गए, यानी इस बल्ब का रेजिस्टेंस R1 और R2 है। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि फर्स्ट बल्ब का पावर फाइंड करते हैं। सो पावर is drawn by bulb 1, it is P1, तो इट्स फॉर्मूला स्क्वायर R1, क्योंकि करंट तो सेम ही रहेगा। तो पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, करंट। तो करंट फॉर सीरीज कनेक्शन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। इस सिनेरियो में टोटल करंट क्या होगा, टोटल पोटेंशियल 220 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2। रेडी। तो अपन लोग देखो इधर में ऐसे ही 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय 25 प्लस इधर होगा 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय 100। अब सबसे पहला काम करते हैं 220 कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसमें से कॉमन। अब जिसे कह सकते हैं कि बचा कुचा काम है वो लेते हैं इसका एलसीएम, यानी कि ऐसा हो तो सबसे पहले अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इधर जिसे कह सकते हैं कि बन जाएगा 2200। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 25 220 मल्टीप्लाई बाय 25, देखो ये बन गया। इतना करंट आपका आएगा। अब ये करंट को अपन लोग इधर यूज करें और रेजिस्टेंस तो अपन लोग पहले का जानते ही है, तो उसके मुताबिक सिंप्लीफिकेशन दो तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्योंकि आपको करंट दिया है। सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड करंट है 220 अपॉन R1 प्लस R2। हियर आंसर आएगा सिंपल 16 वॉट, P1 आएगा 16 वॉट, यानी सब कैंसिल होता ही होगा। एंड P2 है सिंपली 4 वॉट। P2 फाइंड करना हो तो कौन सा शॉर्टकट, वापस P2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R2। एक बार I मिल गया तो इजी। मैंने इधर कैलसी नहीं किया, आप कैलसी कर सकते हो तो नो डाउट इजी हो जाएगा, मगर ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है और हमने कल ऐसा न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, मगर उसमें कौन सा बल्ब है याद करो। 15A का क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे 15A, उसमें हमने डिस्कस किया था कौन सा बल्ब है वो रहेगा और कौन सा बल्ब है वो उड़ जाएगा, यानी कि गेट फ्यूज। तो उसके लिए भी अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन में सिंपल पूछे कि अगर ये दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो कौन सा बल्ब है वो उड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको दोनों बल्ब्स के करंट फाइंड करने पड़े, I1 और I2। तो I1 I2 फाइंड करना हो तो भी जिसे कह सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं, मगर इधर जिसे कह सकते हैं कि पहले I1 I2 यानी करंट कैपेसिटी, तो इस तरह देखो P1 इज इक्वल टू V1 I1 एंड P2 इज इक्वल टू V2 I2। तो ये इक्वेशन के ऊपर से I1 मिल जाएगा, ये रहा V1, ये रहा P1, तो I1 मिल गया। तो इस करंट का मैक्सिमम कैपेसिटी I1 होगा और B2 बल्ब का ये रहा P2 और ये रहा V2, तो इसके ऊपर से I2 मिल जाए, यानी कि मैक्सिमम I1 जितना करंट फ्लो हो सकता है बल्ब B2 में से I2 जितना करंट फ्लो हो सकता है उससे ज्यादा करंट फ्लो हुआ मतलब बल्ब गया। तो अपन लोग पहले I फाइंड कर लेंगे ऐसे न्यूमेरिकल में। अगर I की वैल्यू I1 से ज्यादा होगी मतलब इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी उससे करंट ज्यादा फ्लो होगा तो बल्ब गया। अगर फर्स्ट बल्ब की करंट कैपेसिटी I1 वो I से कम होगी मतलब जिसे कह सकते हैं कि बल्ब है वो जिसे कह सकते हैं कि सॉरी करंट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो बच जाएगा, करंट कैपेसिटी कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब वो गया। इन शॉर्ट ये आप जानते हो कि मैं जो करंट पास कर रहा हूँ I है और इस बल्ब की मैक्सिमम कैपेसिटी I1 है। अगर जो करंट पास हो रहा है वो मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा होगा मतलब बल्ब गया। तो ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन हमने एक में दो क्वेश्चन समझने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन दिस इज ऑलरेडी आस्किंग JEE 2019 ना, तो ये सभी क्वेश्चंस को देखो अच्छी तरह। और अब अपन लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, कौन सा है वो आपको पता चल ही जाएगा, डोंट वरी। मगर इतने सारे चैप्टर पॉइंट्स में है, थर्ड चैप्टर में बिंदास बहुत वेराइटीज है। सो जस्ट वी कैन से कवर इट एंड बी रेडी फॉर मोस्ट टाइम पे
JEE NEET paper of this chapter number 3. Thanks.